देखिए the next concept which we are starting, that is hidden goodwill. Hidden goodwill, why we are saying the concept hidden goodwill? Because in this concept we will find out the amount of goodwill which is present but not given in the question. Hidden का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ. Hidden का मतलब होता है छुपा हुआ. Amount of goodwill तो है, the goodwill is present in the question. The goodwill is present in the business, but it is not given in the question. So how we will find out that amount of goodwill? ठीक है? In mostly questions, अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उसमें either firm's goodwill given होती है, ठीक है? Firm's goodwill given होती है. Then we can able to find out the new partner share on the basis of firm's goodwill. या फिर आपको जो न्यू पार्टनर आ रहा है या जो पार्टनर्स गेन कर रहा है, आइदर न्यू पार्टनर या फिर द पार्टनर हु इज गेनिंग, उन दोनों का अमाउंट ऑफ प्रीमियम गिवन होता है आपको, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी. बट व्हेन these both the things are not given, then how you would know whether we should provide the premium or not, or the firms having the goodwill or not, then how we will know? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. To find out the hidden goodwill, we have a formula. क्या है वो फॉर्मूला? The formula is total capital according to new partner total capital according to new partner minus adjusted capital of all the partners including new partner. So you can say difference between total capital according to new partner minus adjusted capital of all the partners including new partner. This is the formula. अभी आपको नहीं आ रहा होगा कि what is this, what I am explaining, because we are having two new terms. दो नए terms मैंने यहाँ पे आपके सामने बोले. The first new term is total capital according to new partner. This is what total capital according to new partner. देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, उसमें उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. जैसे फॉर एग्जांपल D is coming for 1/4 share in the business and he is coming with 2 lakh. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. So I have taken the example like D is the new partner and he is coming for 1/4 share or he is contributing 2 lakh as capital. So according to him the total capital D से 2 लाख रुपए मंगाए जा रहे हैं एज अ कैपिटल और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो वो क्या सोच रहा होगा कि हो सकता है मुझसे टोटल फर्म की कैपिटल का 1/4 मंगा रहे होंगे. तो उसके हिसाब से टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी आप नॉर्मली ओरली भी कैलकुलेट कर देंगे. आप कहेंगे 8 लाख रुपए, है ना? तो ये 8 लाख रुपए आपने कैसे निकाले? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/1 ही तो किया आपने. तो सेम मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, capital contributed by the new partner multiply by reciprocal of their share. ठीक है? So capital of firm according to
new partner equals to 2 lakh, that is capital contributed by the partner, new partner, और मल्टीप्लाई बाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 4/1, तो इसको करेंगे तो दिस इज 8 lakh. So according to new partner, the firm's capital is 8 lakh. So first part of this formula is clear, I think. For the next part, second part, that is adjusted capital of all the partners. Adjusted capitals, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजस्टेड कैपिटल आप समझ सकते हैं, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी. अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या रिजर्व्स है तो उनको जोड़ दीजिए इस कैपिटल में. इफ देयर आर एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो कैपिटल में से माइनस कर दीजिए. If is any kind of goodwill is there, that is old goodwill. Old goodwill को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, तो वो वाली गुडविल भी माइनस कर दीजिए. अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो आप इनकी कैपिटल में प्लस कर दीजिए. और अगर कोई लॉस है रिवैल्यूएशन का तो माइनस कर दीजिए. और प्लस करनी है इसमें आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल, साथ में जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल, वो प्लस कर देंगे. तो आपके पास जो कैपिटल निकल के आएगी उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल. जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा था, तो फंडामेंटल में आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे. कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल होता था और क्रेडिट साइड में जो भी एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को देने होते थे वो उसकी क्रेडिट साइड होते चले जाते थे. वही काम मैंने यहाँ किया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या फिर पार्टनर का प्रॉफिट हो गया या फिर एनी काइंड ऑफ सैलरी, वो सब जोड़ दीजिए. कोई जनरल रिजर्व वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह है तो वो जोड़ दीजिए. लॉसेस माइनस कर दीजिए और साथ में आप जो नया पार्टनर लाया है उसकी भी कैपिटल जोड़ देंगे. तो उससे क्या हो जाएगा, दिस इज यू आल्सो कैन कॉल्ड एज एडजस्टेड की जगह आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल की जगह दिस इज एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल कितनी है अभी निकाल ली थी हमने कि व्हाट द न्यू पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग. अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कितनी है और एक्चुअल कितनी है, उन दोनों की डिफरेंस को. न्यू पार्टनर सोच रहा था अभी कितने रुपए, 8 लाख, और मान लीजिए ऐसे टोटल करके आता है मान लीजिए 6 लाख, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 2 लाख. तो 2 लाख इज योर गुडविल. सो बेसिकली गुडविल इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द न्यू पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट द कैपिटल and what it is actual. The positive difference between the capital according to new partner minus actual capital of the firm, that is most updated. जो actual capital है वो भी updated होनी चाहिए. Updated मतलब adjusted. अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो उसमें एडजस्ट होने के बाद वाली कैपिटल, तो उसका डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल. तो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड हिडन गुडविल. देखिए बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 37. A and B are the partners, or the capital is of A is 60,000 and the capital of B is 120. They admit C as a new partner for 1/4 share, and C bring a capital of 70,000. Find out the amount of goodwill. So very basic question is there. बहुत ज़्यादा information नहीं है question में. तो capital according to न्यू पार्टनर, तो मैंने बताया था व्हाटएवर कैपिटल ही प्रोडक्ट और उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके शेयर का रेसिप्रोकल. तो 4/1. सो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 280. नए पार्टनर के अकॉर्डिंग 280 की कैपिटल होनी चाहिए, बट एक्चुअल कैपिटल है 60 प्लस 120 और प्लस 70. बाकी हमें कोई एडजस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं रखा, तो वी विल नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग. सिर्फ तीनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ देंगे. तो 180 ये हो जाएगा 180 एंड 250. टोटल ऑफ एक्चुअल कैपिटल इज 250.
Now the question is simple. Find out the goodwill. Formula ऊपर लिखा हुआ है मैंने. Capital according to new partner, that is 280 minus actual capital, that is 250. So the goodwill of the firm is 30,000. Firm की goodwill होगी 30,000. This is the answer. One more thing we are solving here. Question number 40. Question number 40. Again, we have two partners, X and Y, and they both have the capital of 50,000. They admit Z for 1/4 share, and Z is bringing 80,000 as his capital. Fine. साथ में हमें देखा है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज ऑफ 40,000. कोई दिक्कत नहीं है. कैपिटल अकॉर्डिंग टू जेड, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, दैट इज 3,20,000. उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 3,20,000, लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है? That is capital of all the partners including you plus any profit minus any loss. तो हमारे पास X की कैपिटल 50 है, Y की कैपिटल भी 50 है और Z की कैपिटल 80 है और प्लस भी यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी हम यहाँ जोड़ लेंगे बेटा. तो हमारे पास अमाउंट हो गई कैपिटल ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 220. एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 220. 50, 50, 1 lakh, 1 lakh 80 and 220. Fine. Goodwill निकालने का तरीका वही रहेगा. Goodwill equals to the total capital according to new partner, that is 280, and actual capital is 320, and actual capital is 220. So the firm goodwill is 1 lakh. Firm goodwill कितनी हो गई? 1 lakh. अब इसमें निकाल सकते हैं आप लोग Z का शेयर. Goodwill multiply by share of Z, वो आ जाएगा 25. न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या माना जाएगा? सेम. सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा? सेम. और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो मैं इक्वल मानूंगा. तो बोर्ड एंट्री यू विल पास कैश अकाउंट डेबिट. ये पोर्शन में रख कर देता हूं. Journal entries. Cash account debit. 2Z's capital account. And 2 premium for goodwill account. Z is coming with a capital of 80,000 and goodwill of 25,000. So he is coming with 1,05,000 of cash. So this premium will be distributed among the sacrificing partners. Or that is your X and Y. Or if nothing is given, then old becomes their sacrificing ratio. And old ratio is also not given, so we will consider equal. So we will equally divide this amount among the sacrificing partners. 12,500, 12,500, or in this manner we will solve this question.